Okay, so I could connect now. Let me share. So in last class, we have seen this. How do we consider? What is a shape function? What type of How do we consider? Just a moment. You are not in a meeting. I stopped. Why? Everybody is able to see the screen. Yes, ma'am. Okay. Just monitor if it is moving or not. I'm just trying to uh, because it's giving me a message that you are disconnected from the device. So it's not scrolling up or down now. Yes, yes. Is it? It is scrolling. No, ma'am. नहीं hang हो गया है. Okay. Oh, I left the meeting. It is showing. Oh, sorry. Once more. Hmm. This is IDR. Okay. So we will consider the questions, question paper, Mumbai University questions after your IA. So before that, whatever basics are there that I am covering, which is very much needed, and that is definitely going to help you in your final exam also. But I relate the main university exam related, what is the question paper pattern and all that we will cover after IA exam. Because this basics itself is not done, so we cannot jump to the question papers. Okay, let's let me again share the screen. Sharing audio and turns off your mic. Also share your device audio. The mute button stop sharing audio. Okay, fine. Start broadcast. Okay, till my this iPad gets connected. So today we will be seeing how do we consider, when there are element shapes, nodes, and nodal unknowns. So in this particular topic, we'll see two noded element, bar element, how that matrix is forming. That we will be seeing in today's class, and then two noded element. Then we'll go for three noded element, how the matrix is forming. Then we will also go for the four noded element. Okay, a rectangular element. So we are into natural coordinate system currently. So last class we started with that natural coordinate system, and how do we use that system to form the matrix. I hope now it is okay. Now I can see it. So I want you to simultaneously take down the notes. So please uh, write down element. So we are into natural coordinate systems now.
uh, type of coordinate system, like natural coordinate system, global coordinate system? Yeah. Okay. Okay. So in this, consider 2D noded element. Okay. 2D noded element. Or we can also call it as a bar element. We have seen bar element also initially. The basic stiffness matrix we have seen how to form that. Now in this, how we have to see, when you consider any bar element. Okay, this is one bar. In this, on this particular bar, let us take one, this particular bar, it is in x direction. Okay, this is in, on this particular bar, let us consider coordinates as x1 and x2. What is this x1 and x2? This is representing, there is some point on the bar which is x. Okay, and this bar, let us consider that okay, on this particular bar, if you consider its coordinate to the left and right side, so we consider it in this way. Let us consider कि अगर इसका length है, इसका total length of this particular element, let us consider it as L. तो ये L है लेंथ, तो हम इसे ऐसे देखेंगे कि इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट पर्टिकुलर x1 जो है विच इज करस्पॉन्डिंग टू -1 एंड x2 है 1. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल लेंथ है, ओके, इट इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1. ओके, सो इन दिस व्हेन वी कंसिडर natural coordinate system, so x is the point which is lying between x1 and x2. Okay, and in this case the total length from x1 to x2, it is considered as L. Now when we see the distance L between x and x1 and x and x2, okay, so in that particular we may consider it like, you know, L1 L2. So we, if you consider that there is some point x, and if you know, some point P here which might have coordinates, we may consider coordinates as L1 L2. So we can write equation as, for this particular case, consider equation as L1 plus L2 is equal to 1. Okay, so the equation is written as, when you consider two coordinates here, so their basic equation we have to consider it as, so this particular natural coordinate system, it is this system, you know, this is two noded, but this is again right here, it is one dimensional. Okay, for the single bar what we are considering, the standard format of equation is L1 plus L2 is equal to 1 we write, and then we have to write that L1, that is corresponding to x1 distance, okay, x1 coordinate, and L2, that point is corresponding to x2 distance. So the equation forms as L1 x1 plus L2 x2 is equal to x. Okay, so write down, this is the standard format of the equation when we consider this particular 1D bar element. Okay, two noded bar element. Now this particular expression, if you see, there are two equation. If you have to write it in a matrix format, so how you will write, so this you will write it as, here you see there is one coordinate, है ना, if you see here the silent member here 1, here also 1. Okay, so how we will write, the matrix will be like 1 1, and in this it will be x1 x2, further it is
L1 L2 is equal to this third element. So it is 1x. So complete this matrix. I have to go to the next page by this time. Okay. So this is the, whenever we talk about the natural coordinates, how the flow will go. Okay. So first we have to consider, understand this particular bar with two coordinates, and x is the coordinate which is lying between any 2 points x1 and x2, and the corresponding any point P is acting on that particular point. It may be it can be called as a force, or which is having again coordinate L1 and L2, which corresponding to the x1 and x2 place. So L1 corresponds to x1, L2 corresponding to x2. Now this particular matrix, when we write in the form of L1 L2, so in that case it will become a inverse. Okay, so we can write L1 L2 is equal to 1 upon x, the same, not 1 upon x, sorry, 1 and x, and इसका inverse लिखना है हमें, 1 by x1 1 by 1 x2 minus 1. Now we can also write it as in the form of transpose. For this particular matrix, the transpose will be तो ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है, तो 1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर इफ यू आर नॉट गुड एट मैट्रिसेस यू मे टेल मी, आई विल टेक वन क्लास ऑन दैट, ये कैसे ट्रांसपोज कैसे हुआ, इनवर्स कैसे हुआ, अगर उसमें चाहिए तो वी कैन हैव वन क्लास ऑन दैट। जो मैंने कुछ दिन पहले नोट्स दिए थे आपको, उसमें सारा वो मैट्रिसेस का दिया हुआ था, द बेसिक्स ऑफ इट। फर्दर वी कैन राइट इट एज x2 माइनस x1 माइनस 1 1। ओके, सो यहाँ पे इनवर्स से ट्रांसपोज हो गया है ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होते समय द पैरामीटर्स कम x2 माइनस x1, इट कम्स आउटसाइड, एंड इसका जो रो टू कॉलम यू कैन सी द चेंज हियर। ओके, दिस टू diagonal elements they have become negative here, and x2 minus 1, and further when you have to remove the transpose we can further rewrite this matrix as x2 minus x1 minus 1 1. So finally our matrix come in the form of L1 L2 1 by x2 minus x1 x2 minus x minus x1 plus x। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 by x है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, 1 by x, ये जो 1x है उसको मल्टीप्लाई किया, तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज x2 माइनस x1, ये जो पर्टिकुलर है, व्हाट इज x2 माइनस x1? x2 minus x1 is the length of the element. Further we can, ये जो x2 minus x1 है ना, उसे हमने क्या किया है, L से, it is length of the element. So how we can write it? So further we can write this matrix as L1 L2 is equal to x2 minus x by L, x minus x1 by L। अभी आपको ये देखना है कि जो x है इट इज इन बिटवीन x1 एंड x2, है ना, यहाँ पे जो x है एलिमेंट इट इज इन बिटवीन
x2 and x1. So you can remember that way. Okay, x2 minus x and x minus x1 by l. मैम वो वन एंड एक्स जो है ना वो अपने इंटरनली ब्रैकेट में जो मल्टीप्लिकेशन किया है हाँ, वो एक्स वन बाजू में था ना एक्स टू कैसे आ गया कौन सा वाला स्टेप बता रहे हो आप? मैम जो आपने रेड लाइन ऊपर वाला स्टेप जो वन और एक्स का मैट्रिक्स इंटरनली आपने मल्टीप्लाई ये वाला बता रहे हैं? हाँ हाँ मैडम उसमें हाँ, ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो है ना 1/x. हाँ ओके, सो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो. दिस इज अ कॉलम ना. कॉलम से आप ओके अगर रो को मल्टीप्लाई करोगे देन दिस इज द कॉलम. ये कॉलम से आप अगर रो को मल्टीप्लाई करोगे, अगेन कॉलम से रो को मल्टीप्लाई करोगे, सो जस्ट चेक. 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी x2 माइनस x1 एंड इसको आप करोगे तो just a minute. ठीक है वो चेक करती हूँ मैडम एंड हाँ, मैम एंड वो आपने जो रेड में लिखा है कि x2 माइनस एक्स अपॉन एल वो कैसे आया माइनस x1 अपॉन एल x2 माइनस x1 जो है ना वो l है. ठीक है, इसको हमने l ले लिया है. ये जो है ना इसको आपने l करके ले लिया है. तो आपका ये जो पैरामीटर है इसको जो है ना आप इसको सिंपली समेशन कर लो, x2 माइनस x कर लो, और ये दिस यू कैन राइट इट एज x माइनस x1. और ये l है जो इसके बीच में आ गया है. ये इसको, ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है ना. ये नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई हो रहा है. सी जस्ट. बट मैम वो माइनस कैसे है हाँ, तो वो तो सिर्फ पोजीशन चेंज है ना उसकी. सी, ओके दिस इज x2 माइनस x इंटू 1/, ये जो बाजू वाला है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. देन माइनस x1 प्लस x इंटू 1/x2 माइनस x1. ठीक है, अभी इसको ये जो x2 माइनस x1 है वो l है, तो आप इसको लिख सकते हो x2 माइनस x बाय l लिख सकते हो, और x माइनस x1 x को आप सिंपली लिख सकते हो x माइनस x1 बाय l. ओके, मैडम. हाँ बोलिए. मैम मैट्रिसेस में समेशन थोड़ी होता है, x2 माइनस x कहाँ से आ गया? ये जो ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो अपना लास्ट स्टेप है ना उसमें x2 माइनस x, उसमें इस तरह से ही जाना है हमको. मतलब बेसिकली मैडम वो प्लस किया आपने हाँ कॉलम्स को प्लस किया देन यू मल्टीप्लाइड विद द वन हाँ, अपॉन एक्स x2 माइनस x1, हाँ दैट इज द l. तो फर्स्ट वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ दोस रोज हाँ एंड देन मल्टीप्लाई विद द कॉमन टर्म नो हाँ, यस. ओके, सो इसके बाद हमारा L1 का जो आंसर आया है
x2 माइनस एक्स बाय एल एंड L2 का आंसर आया है x माइनस x1 बाय एल। नाउ ये जो पॉइंट है x जो है वो x1 और x2 पे है, ठीक है। ओके, हु स्पोक अबाउट द मैट्रिसेस में समेशन होता है, इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। उस पे वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम अबाउट इट, सो विल कम टू इट लेटर। So x is it between x1 and x2, so when this x when is when this x is equal to x1, in that case you will write L1 is equal to x2 minus x1 by L, and x2 minus x1 क्या है, this is the total length, okay, so you will write L by L, so it becomes 1, and L2 जो है it will be, we have said that, okay, x equal to x1, so आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x1 minus x1 by L, तो आपको 0 आ जाएगा। Okay, please complete till here. मैम इसका कोई बुक में सोल्यूशन है क्या? आई डोंट नो, देखती हूँ मैं। एक ना कुछ आपके जो सिलेबस में है, एक फॉरेन ऑथर की टेक्स्ट बुक है, आई ट्राई टू फाइंड आउट, बिकॉज उन्होंने जो सिलेबस बनाया आपका एफएम का, शायद वो बुक को रेफर किया है, बट आई डोंट नो वो वहाँ पे है कि नहीं। अभी ये सेम टू सेम आई हैव फ्यू नोट्स विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू, यू मे रेफर टू दैट, एंड मोस्टली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी ये सारे ऑनलाइन नोट्स ही रेफर कर रही हूँ, बट ओके कुछ बुक का रेफरेंस है तो आई विल शेयर। आई ऑल्सो हैव अ टेक्स्ट बुक, चंद्रपुटला एक टेक्स्ट बुक है जो आपके बुक में इसमें भी दिया हुआ है रेफरेंस में, बट उसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, बिकॉज थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा वो करेंटली, बिकॉज आपको एक्चुअली बहुत ही सिलेबस में काफ़ी बेसिक ही है, ज़्यादा आगे के क्वेश्चंस नहीं है। ओके उन्होंने मैट्रेसिस पे ही, आई वो सरप्राइज टू सी कि आई थिंक मैट्रेसिस का एक यूनिट है शायद, सो आई डोंट नो कि वो मैट्रेसिस वो करवाना है कि एफएम में जाना है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैट्रेसिस का नहीं है क्वेश्चन एज सच, सो Okay, madam. दैट्स व्हाई आई हैव स्किप दैट पार्ट, मैट्रेसिस। Okay, so now we see that L1 and L2, it is we got the value as 0 and 1. Now 1 and 0 मिला है। अगर हम if we consider x is equal to x2, so in that case L1 is equal to x2 minus x2 by L हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, and L2 will be x2 minus x1, so it is L by L, तो 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर x अगर x1 की पोजीशन पे है तो वी आर गेटिंग 1 and 0, ओके, व्हेन x इज एट x1 के पोजीशन पे वी आर गेटिंग L1 इज इक्वल टू 1 एंड L2 इक्वल्स टू 0। अगर x जो है x2 के पोजीशन पे है, सो वी आर गेटिंग L1 एज 0 एंड L2 एज 1। इसका मतलब है इसका जो वेरिएशन है वो लीनियर है, ओके। तो वेरिएशन लीनियर, इसका मतलब क्या है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 है, L1 1 है, अगर हमें इसे प्लॉट करना चाहते हैं तो, और ये 0, ये कौन सा कंडीशन है? x इक्वल टू x1। और दूसरे का डायग्राम, यहाँ
पे x इक्वल टू x2, तो हमें मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 1। सो ये था हमारा 2 नोडेड एलिमेंट। ओके, सो कमिंग टू नाउ 3 नोडेड एलिमेंट। सो जो स्टेप्स है, द सिमिलर स्टेप्स विल बी देयर, सो जस्ट लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। पहले हमने क्या किया है, वी आर गोइंग थ्रू नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमने ये देखा है L1 प्लस L2 पहले is the first equation, it is 1. So when you will take 3 noded element, okay, so 3 noded hai means we will have 3 coordinates, L1 plus L2 plus L3 equals to 1, okay, and then we will have, because it is 3 noded element means it will definitely, it can be in one single line or it can be a 2D system. Mostly we will, because now we are already studying a 1D element, so we will now go for a 2D system. So for 2D system we will have these equations like we have written here L1 x1 L2 x2, इस तरह से जो लिखा है, बट अभी हमारा 3 नोड है तो उसमें इक्वेशन कैसे होगा, L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 इक्वल्स टू x। बट अगर 2 डायमेंशनल है मीन्स हमारा y कोऑर्डिनेट भी आएगा, so in that case it will be L1 y1 plus L2 y2 plus L3 x3 equals to y। ओके, सो इस तरह से हमारा 3 नोडेड जो एलिमेंट होगा, जो ट्राइंगुलर एलिमेंट हम लेंगे उसको कंसिडर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज हमारा जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स भी 1 1 है यहाँ पे, तो वहाँ पे ये क्योंकि ये 2 by 2 बना है अभी मैट्रिक्स यहाँ पे ना, वहाँ पे कैसे बनेगा, 3 by 3 बनेगा। सो 1 1 1 आएगा, x1 x2 x3 आएगा, y1 y2 y3 आएगा, L1 L2 L3 1 x y। ओके, सो इस तरह से वो चेंजेस होते जाएंगे एंड देन उसको हम इन्वर्स करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। ओके, सो उस हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड हमें फॉर्मेट मिलेगा। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो कि जब मैट्रिक्स का साइज बढ़ता जाता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसको एक्चुअली यू नो सॉल्व करके लिखो। सो समवेयर यू हैव टू गेट यूज टू इट कि थोड़ा सा वो पर्टिकुलर एटलीस्ट 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा कुछ बाय हार्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बाय हार्ट नहीं एग्जैक्टली, बट कैसा फ्लो है वो ध्यान में रखोगे तो यू नो इट विल बी ईजी टू राइट दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन इन केस सच डेरिवेशन कम्स। और अदरवाइज वी कैन क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा फ्लो ही ध्यान में रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन कैन आल्सो कम इन एग्जाम। ओके, तो थोड़ा सा नाउ लेट अस गो फॉर दैट 2D एलिमेंट। Okay, so when there is a triangular element, before we move to the 3 noded element triangular element, let us try to understand कि अगर एक triangular element एक xy coordinate system में है, ठीक है, so मैं I am giving the title here. Three noded element, triangular element.
it is natural coordinate system in today. So consider such triangle. Now let us name the coordinates. Okay, 3 नोडेड है तो हम इसको पहले इसके नोड्स के नाम देते हैं 1, 2, 3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 and let us consider any point which has the coordinate x1 and corresponding coordinates for that particular point. We'll consider it as L1, L2, L3. अभी इस पे हम मूव करें, ओके, ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए मूव करें उसके पहले वी विल सी कि अगर इस तरह का ट्रायंगल है तो आपको उसका इस तरह के ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, हाँ, तो उसके लिए इफ यू कंसिडर सच ट्रायंगल, सो आई विल क्रिएट वन मोर पेज फॉर दैट. तो अगर ऐसा ट्रायंगल है कोई ए बी सी, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले ले तो लेट अस कॉल इट एज उसका जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे उसको लेट अस कंसिडर इट एज अ पॉइंट बी एफ. जस्ट अ मिनट. इसको प्रोजेक्ट करके लेते हैं नीचे, इसको ई बोलते हैं एंड इसको डी बोलते हैं. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको कैसे लेंगे हम, वी विल कंसिडर यू नो इफ व्हाट यू से, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x2, y2, x3, y3, इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट्स है जैसे हमने अब ऊपर के डायग्राम में लिखा है, तो आप इसको अगर देखते हो कि एरिया ऑफ ए डी सी ई, ओके, ये वाला हमने ट्रेपेजॉइड लिया, ये जो दिख रहा है हमको ए डी सी ई प्लस एरिया ऑफ सी ई एफ बी, ये हम एक थोड़ा सा रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन एरिया ऑफ ए डी एफ बी, एरिया ऑफ ए डी एफ बी. मैम दैट विल बी माइनस, नो, तभी जाके वो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना. Yes, 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 yeah, thank you. ADF. Yes, yes, you are right, you are right. Yes. Eraser आ गया. Yes, yes, thank you.
AD ADFB, ओके, वो माइनस हो जाएगा। अभी हमें इसको ट्रेपेजॉइड करके अगर हम कंसिडर करते हैं, ADC क्या है, ये ट्रेपेजॉइडल है ना, तो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू AD प्लस CE इंटू DE, ओके, प्लस 1/2 इंटू CEFB, so 1/2 इंटू CE प्लस FB इंटू EF माइनस 1/2 इंटू AD प्लस BF इंटू DF, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अभी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है हमें पता है, यहाँ पे क्या है, x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, यहाँ पे x3 y3 है। तो हम कैसे लिखेंगे AD को, कैसे लिखेंगे, अगर हमें AD अगर लिखना है तो हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा DE डिस्टेंस जो है, दिस इज योर x1 कोऑर्डिनेट, दिस इज y1 कोऑर्डिनेट एंड AD। तो हमारा ये y1 डिस्टेंस हो गया, AD यानी क्या हो गया, y1 डिस्टेंस है ना यहाँ पे, क्योंकि ये y1 है, तो हम AD को लिख सकते हैं y1 एंड प्लस CE को लिख सकते हैं, CE जो है वो y3 x1 हाँ y3 कोऑर्डिनेट है ना वो, तो हम उसको y3 लिखेंगे। प्लीज वॉच इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक। CE जो है वो y3 कोऑर्डिनेट है, दैट्स व्हाट आई सी। हाइट इज इनटू DE, तो DE क्या आएगा हमारा, दोनों का डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस क्या है, x3 माइनस x1। ऑल गुड, आई एम टेकिंग करेक्ट राइट, प्लस 1/2 CE। अभी CE का हमारा जो डिस्टेंस है, CE का लेंथ है हमारा y3, देन FB का है y2 एंड इनटू EF क्या होगा, x3 माइनस x2, नहीं सॉरी x2 माइनस x3, so that we get a positive length, plus the third one, sorry not plus, minus 1/2। नाउ यहाँ पे क्या है, AD एंड BF, AD क्या है y1, BF क्या है y2 इंटू x2 माइनस x1, ओके। सो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, इसका और एक लाइन हमें हमारा आएगा, इसको जब आप क्या बोलते हैं इसको, x3 x2 ये सबसे आप जब करोगे तो इसको आपका एरिया निकलेगा, ठीक है। अभी मैं उस पर और टाइम स्पेंड नहीं करती, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि इसका एरिया हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ओके। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। आई जस्ट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, because it's just opening the bracket and rewriting it, so that's why I'm just leaving it here। तो मैम साथ में लिखना है क्या, हाँ, और ब्रैकेट्स ओपन करके सिमिलर वेरिएबल्स को साथ में लिखना है क्या, x2 x3 के फॉर्म में आएगा, ओके। हाँ। या तो मैं लिख भी सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, अब फाइनल इक्वेशन लिख देंगे तो भी चलेगा। हाँ हाँ ठीक है। सो यहाँ पे है x3 माइनस, फाइनल इक्वेशन वैसे है नहीं मेरे पास, जस्ट अ मिनट, x3 when you open the bracket x3 y1 minus x1 y1 minus x1 y3, ये हो गया, ये अपना पहला ब्रैकेट हो गया। मैंने 1/2 ना पहले ही बाहर निकाल दिया है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, x2 y3 माइनस x3 y2, देन माइनस, ओके, यहाँ पे अभी ये थर्ड एक्सप्रेशन पे हूँ मैं, लास्ट वाले। सो यहाँ पे x2 y1, दिस माइनस ब्रैकेट के बाहर ही है, ओके। सो अंदर चेंज नहीं होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब चेंज होगा,
सो ये हुआ अपना टोटल इक्वेशन. ओके, सो जो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे कुछ कॉमन पैरामीटर्स शायद या तो कैंसिल होंगे या तो ऐड होंगे. लेट मी चेक. सो यहाँ पे आया x3 y1 माइनस x1. अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ. x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x3. मैम हाँ हर बोलो. एक का 4 एलिमेंट है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएंगे ना एलिमेंट्स फॉर ईच. कौन सा वाला? मतलब आप फॉर एग्जांपल हाफ y1 प्लस y3 इनटू x3 माइनस x1 ले रहे हो, हाँ, तो x3 इनटू y प्लस x3 इनटू y3 माइनस x1 इनटू y1 माइनस x1 इनटू y3 ऐसा होएगा ना oh yes 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 yes. हर एक का. Just a moment. What you are doing actually it's a very simple thing. मैंने कोई But- मिस्टेक किया है? Just a moment. What you are saying is correct. मैंने क्या किया है देखो, x3 को मल्टीप्लाई किया y1 y3 के साथ. x3 y1. अच्छा मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया. आई एम सो सॉरी. ओके, आई एम जस्ट री राइटिंग इट. आई एम राइटिंग इट हियर. हाफ हमने बाहर निकाल दिया है. पहले लेटेस्ट मल्टीप्लाई विथ कुछ तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया. x3 y1 पहले सिर्फ x3 से मल्टीप्लाई करते हैं. x3 y3. थैंक यू सो मच. x1 y1 माइनस x1 y3. करेक्ट, दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ इसको फिर से एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ क्योंकि बीच में माइनस है. अभी x1 और x3 से हो गया है. देन x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2. ओके, नाउ दिस इज करेक्ट. अभी हम यहाँ पे बीच में नेगेटिव है तो अभी पूरा ब्रैकेट्स ओपन कर देती हूँ. सो x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 x1 y3 प्लस x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2, क्योंकि माइनस है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस x1 y1 प्लस x1 y2. ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट. अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल, कोई टर्म्स कॉमन है क्या? कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है. x3 y1 पे है क्या? और क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ, x1 y1 कैंसिल हो रहा है. और x2 y2 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो तीनों जो 1 1 2 2 3 3 वाले टर्म कैंसिल हो गए. सो नाउ व्हाट वी विल गेट? आई डोंट थिंक सो एनीथिंग मोर. और कुछ हो रहा है क्या? नहीं. सो वी आर गेटिंग इट एज x3 y1 माइनस x1 y3 plus x2 is somebody is recording class please? Anybody is recording class? Last time one student was recording. Am I in meeting? Yes ma'am, you are taking. Okay, last time one student was recording. Actually I tried to record the screen record, but I couldn't do that. One student was saying ma'am I'm recording, so if he is there I really want that recording. I want to put it in, upload it in ERP.
Is that student there? I don't know who said last time. Some one student was recording it actually. There, ma'am. कोई है क्या? कोई रिकॉर्ड कर रहा है? निखिल कर रहा था लास्ट टाइम. कौन? निखिल. वो है क्या यहाँ पे? निखिल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But there was problem. अच्छा, मैंने ना अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू किया था जब मीटिंग शुरू की, बट आई डोंट नहीं, नो. मैंने उस टाइम किया था लेकिन उसमें ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो हाँ। इसके लिए मैंने वो शेयर नहीं किया. अच्छा अच्छा, ठीक है. आई थिंक मेरा हो रहा है शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग. आई डोंट नो, मे बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आई विल ट्राई वंस मोर. जस्ट अ मोमेंट. अच्छा, ऑलरेडी हो रहा है शायद. मे बी इट्स गेटिंग डन. ओके फाइन, गुड. ठीक है. तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस पे ये रिलेशन पे अराइव हुए हैं. अभी हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली हमें मिल रहा है, अगर इसको हम एक पर्टिकुलर 2 3 1 3 एंड 1 2, सो ये कोऑर्डिनेट अगर हम साथ में लाए, सो वी कैन फर्दर री राइट इट एज x2 कहा गया है x2 y3 माइनस x3 y2. तो 2 और 3 नियर बाय पैरामीटर्स है. सो x3 y2 वी कैन राइट इट लाइक दिस. दूसरा है x1 y3 एंड x3 y1. अगर इसको माइनस को बाहर निकाला तो x1 y3 1 3 है, दूसरा 1 3 इधर है तो वो भी माइनस हो जाएगा. x3 y1. फर्दर 2 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, फिर क्या बचेगा 1 2 1 2 है क्या यहाँ पे? हाँ, प्लस x1 y2 माइनस x2 y3. तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बनता है. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ये जो भी हमें फॉर्मूलेशन मिल रहा है. ओके, सो ये हमें मैट्रिक्स में शायद आगे जाके काम में आ सकता है, ये जो भी रिलेशन मिल रहा है. ओके, ये दिस वी मे गेट इट एज अ डिटर्मिनेंट लेटर. विल सी वेयर टू अप्लाई दिस. मैम बट मतलब ये जो एरिया मिला है उसका लाइक कंक्लूजन क्या है, लाइक व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड? सी वी आर नाउ हियर. हम ये थियोरी कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, 3 नोडेड एलिमेंट. तो हम इसका जब आगे जाके यूज़ करेंगे ना, तो उसमें वी मे नीड इट कि इतना पूरा एलिमेंट है. पहले तो हमने सिर्फ बार लिया था ना, तो हमारा ये अगर ये 3 नोडेड एलिमेंट अगर हम देख रहे हैं, तो ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द एरिया इनसाइड ना. अगर ये पर्टिकुलर ट्राइंगुलर एलिमेंट है विच इज हैविंग 3 व्हाट यू से, उसके जो 3 वर्टाइसेस बोलो या जो भी है 3 कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर का एरिया है ना, सो वी मे नीड इट. अगर ये भी आप अगर इसको ऐसे देखो, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम में ये छोटा सा ट्राइंगुलर एलिमेंट है. ओके, ऐसे 100 ट्राइंगल होगी शायद. तो आप देख रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर फोर्स जब एक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर ये होल बॉडी को, तो ये छोटे एलिमेंट में क्या हो रहा है. तो उसके लिए हमें ये भी पता चाहिए कि वो छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या है. ओके ओके, तो ये क्या बोलते हैं, बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट हम एनालाइज कर रहे हैं फिलहाल. ओके. हाँ, तो ऐसे नाउ इन दिस नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने जैसे कहा था कि अभी हम इसके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. तो अभी सो राइट डाउन द इक्वेशंस जैसे हमने पहले लिखा था. L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 1. L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 इज इक्वल टू x. L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 is equal to y. Okay,
So above equations can be written in matrix form as वन 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 बनवलं नको राहू दे. ठेवलंय मध्ये ठीक आहे चालेल. एक सेकेंड ना, मैं इस पे लिख रही हूँ, इसमें ही पेज ऐड कर दूँ क्या? ओके, इसे मैं ऐड कर देती हूँ. I'm coming back to that page. Just a so this again we will be following the similar steps what we have done in the previous case for 2D element. Now L1, L2, L3. You may try to write by seeing the previous steps on your own. अभी यहाँ पे क्या आएगा 1xy क्योंकि ये 3 नोडेड एलिमेंट है. सो थ्री नोडेड बट 2 डायमेंशन है ना, इसलिए एक्स एंड वाई आ जाएगा. अगर 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा? एनी गेसेस? Z आ जाएगा ना. यस, वेरी गुड. Sorry, x1, x2, x3, y1, y2, y3. ओके, सो L1, L2, L3. अभी ये जो पर्टिकुलर 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हमें
इस फॉर्मेट में आंसर मिलता है 1/1 यहाँ पे 1/2a। सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। ये जो पर्टिकुलर 3/3 मैट्रिक्स है, ये जो a जो है वो इसका डिटर्मिनेंट है। ओके, वो a के टर्म में लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा लंबा बड़ा मैट्रिक्स है। सो इसमें x2 y3 माइनस x3 y2 x1 y3, ये सेकेंड कॉलम लिख रही हूँ मैं अभी, x3 y1 एंड थर्ड कॉलम है x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, ये थर्ड वाला थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो है y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 y2 माइनस y1। मैं इसका थोड़ा डिफरेंशिएट करके देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियरली दिखे। या ऐसे करूँ, x3 माइनस x2 x3 माइनस x1 x2 माइनस x1। अभी आप इसको हियर a इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, a इज द डिटर्मिनेंट, यू मे राइट। Just I am referring to the previous steps. तो हम कहाँ पे है अभी? हमने मैट्रिक्स लिया था, इन्वर्स किया था, फिर इसको ट्रांसपोज किया था। अभी हमारा 1 x1 y आ गया। ओके, फर्दर हम ये मैट्रिक्स, हाँ बोलिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे थे आप? मैम, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपने लिखा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, हाँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सा लेना है? ये जो हमने पहला जो लिखा है ना, जिसका इन्वर्स कर रहे हैं ना हम, ये वाला, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो यू विल अराइव एट हियर। ओके, तो अभी हमें उसका जो आंसर है, जो अगर वैल्यूज के साथ है तो हमें वो मिल जाएगा आंसर उसका। ठीक है, अभी हमारे सारे वेरिएबल्स है ना, तो हमने ये हाँ। 2a करके उसका डिटर्मिनेंट एक कुछ निकलेगा, तो उसको हमने 2a के फॉर्मेट में, यानी a के फॉर्मेट में उसको दिया है। ठीक है, जब वैल्यू आएगी तो उसका वैल्यू हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो तो आप कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो। वो ऊपर वाला जो 1 x1 y1 आपने जिसका इन्वर्स लिया, वही वाला मैट्रिक्स है ना? हाँ हाँ, यस यस, ओके, दिस वन, दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सॉरी, मैं दूसरे स्क्रीन पे रेफर कर रही थी, ये वाला जो है ना, 111 x1 x2 x3 y1 y2 y3। Further, we can write it as L1 L2 L3। इसका जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रोज को कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं 1/2a। तो आपका जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा,
Now it will look x2 y3 minus x3 y2. इसको थोड़ा सा मूव कर सकती हूँ क्या मैं? मुझे कम पड़ जाएगी शायद. आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन. और ये क्या है? x1 y3 माइनस x3 y1. x1 y2 माइनस x2 y1. ये हमारा फर्स्ट रो है, हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है. अभी सेकेंड रो जो है y3 माइनस y2, y3 माइनस y1, y2 माइनस y1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x1, x2 माइनस x1. नाउ लेट अस अज्यूम दैट ये जो इतना बड़ा सा टर्म है ना, हर एक ये इतने बड़े बड़े टर्म्स है, उसको हम कुछ नोटेशन देते हैं. सो लेट अस कंसिडर a1 इज इक्वल टू x2 y3 माइनस x3 y2, a2 as x1 y3 माइनस x3 y1, a3 is equal to x1 y2 minus x2 y1, b1 is equal to y3 minus y2, b2 is equal to y3 minus y1, b3 is equal to y2 minus y1. Similarly for c1 x3 minus x2, c2 x3 minus x1, c3 x2 minus x1. तो सिंप्लीफाई करके हमारा ये इक्वेशन बनेगा. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. फर्दर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो वी विल गेट L1 L2 L3 इज इक्वल टू 1/2a. तो देखो हम एक 3 नोडेड एलिमेंट पे 2D एलिमेंट के लिए हम कहाँ से कौन से मैट्रिक्स फॉर्म में आए, एकदम सिंप्लीफाई करके. a1 प्लस b1x प्लस c1y, a2 प्लस b2x प्लस c2y, a3 प्लस b3, क्या लिखा मैंने, a3 प्लस b3x प्लस c3y. Now further we can
connected as L1, L2, L3. टू ए है इसमें, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं A1 प्लस B1x प्लस C1y by 2a. सविता, एक मिनट है ना. थोड़ा गरम करने विसरून गेली. छान काढून घेतो. त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक है, तो हमारे हमारे इस तरह से हमें वैल्यू मिल रही है L1, L2, L3 के लिए. किती केलं? थोडंसंच केलं ना? की जास्त झालं? बरंच गरम झालं. ठीक है, कैन आई टेक द नेक्स्ट पेज? डन राइटिंग? Yes, ma'am. So here we can see that we had a triangle. ये जो ट्राइंगल है, अगर बीच में यहाँ पे कहीं कुछ पॉइंट भी है, so we may say that it is divided into three areas: A1, A2, A3. ये ABC है. और इसको अगर हम देखें, है ना, इसको आप देख रहे हो कि ये क्या बोलते हैं इसको, A1, A2, A3 ऐसे देख सकते हो. या अगर हम इसे ये जो P पॉइंट है, क्या बोलेंगे उसको, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो एलिवेशन में ये कैसे दिखेगा. अगर हम इसको 3D में विजुअलाइज करते हैं तो एरिया इसके कैसे डिवाइड होंगे. सो A1, A2, A3 इस तरह से इसके तीन एरियाज हैं. और हमारे जो एक्सप्रेशंस आए हैं L1, L2, L3, तो अगर हमें ये 3D में अगर विजुअलाइज करना है, अगर इसको A1, A2, A3, अभी तो हम 2D एलिमेंट ही देख रहे हैं, तो इसमें अगर हमें स्पेसिफिकली A1, A2, A3 अगर देखना है, तो हमें जो अभी इक्वेशन मिले हैं, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमें जो इक्वेशन मिले हैं, तो फर्दर इसका जो एक मिनट, वो एक्सप्रेशन कहाँ गया, x2 x3, हाँ, x2 y3 माइनस x3 y2.
ओके जस्ट आई टेक अ 5 minutes ब्रेक. एक मुझे चाय थोड़ी पीनी है. ओके आई विल बी बैक. एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. वो उधर अंदर किचन. हाँ हाँ नहीं हम ना यहाँ पे 1 महीने पहले आए हैं. Okay. So I'm back. Okay. सो आतापर्यंत आपण जे कव्हर केलं आहे वी हॅव टेकन अ 3 noded triangular element. Okay students, hope you guys are back. So here in 3 noded triangle element we have considered any point P with L1, L2, L3 are coordinates and we
last class we have also seen as a shape function, and the L1, L2, L3 are also called as shape function. So L1, L2, L3 त्यांचा जो relation है, it is equal to 1. So these three equations we have written. Then we have done the similar steps for what we have considered for two noded element. Then we have done this matrices format, and we have come to the standard equation where we got the value of L1, L2, L3. Now further, if we have to write the expression in terms of that particular area A1, A2, A3, okay, so when we see that whatever determinant formula we have for the area of triangle, when these three coordinates are given as x1, y1, x2, y2, x3, y3, so we can further express those triangles in this format. Just a moment. So these triangles we can subdivide it. So we can express the sub-triangle areas as 2a1 is equal to x2 y3 minus x3 y2 plus x y2 minus y3 plus y x3 minus x2, or 2a2 we can write it as x3 y1 minus x1 y3. So you can see the area 1 is corresponding to the coordinate 2 and 3. Area 2 is corresponding to the coordinate 3 and 1. Plus x y3 minus y1 plus y x1 minus x3. Then 2a3 x1 y2 minus x2 y1 plus x y1 minus y2 plus y x2 minus x1 हाँ हाँ ये जो अपना मशीन लगा है, हाँ नया मशीन लिया था उसके साथ का है, और ये मतलब खराब हो गया, जो चेंज हुआ है हाँ ये रखा है, मतलब फिल्टर खराब हो गया है, हाँ चेंज नहीं करवाया था, तो वो जो लगा है ना लोकल फिल्टर लगा हाँ है, हाँ तो चेंज करना पड़ेगा। just a moment. Students, sorry, just I need a few minutes break. Sorry. हाँ, तो क्या ये तो उन्होंने बोला था नया है? ये चेंज किया हुआ फिल्टर, मतलब ये पहले आपकी मशीन में लगा था, हाँ खराब हो गया, उसके बाद चेंज कर दिए, तो इसको रख लिए होंगे इसे देखने के लिए, तो आपको भूल से या कैसे हो अरे गई। बट उन्होंने हमको बोला मैडम ये नए वाले हैं, इसको फेंकना मत, ये आपको काम में आएगा। ये खराब हो गया तभी तो चेंज हुआ है, ये खराब हो गया। ये खराब है? ओके, अच्छा तो इसका क्या फिर कॉस्ट होता है? इसका मतलब पूरा फिल्टर चेंज करने 2850 रुपये जाएगा। असंच राहते प्युरिफायर असं पैसेच पैसे. खेळणे मला खूप त्रास दिले आधी, पण मला नकोच पाहिजे होतं, पण ते घरामध्ये आहे तर काय करणार. और उसमें डुप्लीकेट फिल्टर लगा दें, कोई मतलब नहीं है, टैंक देखिए, टैंक दिखाई नहीं मुझे, देखिए ये फिल्टर लगाने का क्या मतलब है, फिल्टर लगा है वो, ये सब डुप्लीकेट फिल्टर है, ऑनर लोग ये लगा के देते हैं। एक तो मशीन में डुप्लीकेट फिल्टर नहीं आता है, फिल्टर लगाते हैं कैसे काम में आएगा। ये डुप्लीकेट फिल्टर है,
एंड में जब पेमेंट करना हो तो okay students, I'm back and I'm sorry because when you are at home some or other things happen. Okay, so anyway, some purifier person was here, is here, so कुछ repairing work चल रहा है. Okay, so I was at anyway I'm going to end the class soon. अभी हम end पे ही है, मुझे और भी cover करना था but अभी कितना टाइम है उस हिसाब से. So ये जो formulas हमने लिखा है 2a1 2a2 2a3, these formulas they give the area of each sub triangle. Above formulas give the areas of sub triangle. मैम थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करो. Yeah. तो इसी को हमने जैसे शॉर्ट फॉर्म में a1 a2 जैसे किया था तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x, सॉरी नॉट a1x, a1 प्लस b1x प्लस c1y, 2a2 equals to a2 plus b2x plus c2y, 2a3 equals to a3 plus b3x plus c3y. Further we can write it as L1 L2 L3 2a1 by 2a, 2a2 by 2a, 2a3 by 2a is equal to, we can write it as 1 by a. ये हमें क्या मिल रहा है मैं बताती हूँ अभी. a1 a2 a3. तो बेसिकली ये हमें जो मिला है, ये फाइनल फॉर्मेट जो मिला है, इट इज़, ये जो भी मिला है दिस इज रिलेशनशिप विथ शेप फंक्शन. शेप फंक्शन मिला है हमें एंड वो क्या है, दैट इज L1 इज इक्वल टू a1 by a, L2 is equal to, sorry, a2 by a and L3 is equal to a3 by a. So what does this means कि each shape function it is nothing but the simply the ratio of a sub triangles area to the total triangles area. उतना ही बताता है. इसका मीनिंग जो है each shape function, each shape function यानी L1 L2 L3, each shape function, each shape function is simply the ratio of, it's simply the ratio of a sub triangles
a sub-triangle's area to the total triangle's area. मैम वो रिलेशनशिप शेप फंक्शन का आपने जो एरो किया है ना उसके ऊपर 2a जो लिखा है ना हाँ, डिवाइड बाय 2a कहाँ से हुआ? हमारा जो फॉर्मूला आया था ना यहाँ पे, डिटर्मिनेंट देखो ये वाला। हाँ हाँ ओके हाँ। और 10 मिनट्स एंड आई विल स्टॉप द क्लास, क्योंकि ना एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम पहुंचना चाहती हूँ मैं, नहीं तो फिर हमारा सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे लास्ट सैटरडे क्लास भी नहीं हुआ। तो बस और एक 10 मिनट लेके आई विल स्टॉप। When you are done writing, just let me know. डन मैम ओके। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर मैं आपको नोट शेयर करती हूँ। अभी क्विकली आई विल टेक यू टू द 4 नोडेड एलिमेंट। ओके, ये पूरा इतना सब नहीं करेंगे हम, बट एक बेसिक क्या बोलते हैं, एक उसका फॉर्मेट कैसे होगा उतना वहाँ तक लेके जाती हूँ आपको मैं। सो राइट डाउन 4 नोडेड एलिमेंट। 4 नोडेड एलिमेंट मीन्स मोस्टली रेक्टेंगल। Four noded element, rectangular element. And we are into natural coordinate system. So let us consider a system. It has a node 1, 2, 3, 4. Let us consider any point P inside the element.
and it has a shape functions as L1, L2, L3, L4. हर एक का कोऑर्डिनेट है -1, -1 यहाँ पे, -1, 1, लेटर से इसका है 1, 1, 1, -1. सो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है शेप फंक्शन के रिलेटेड, जो ये चारों का जो एडिशन होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4. सो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 is 1. L1 x1 plus L2 x2 plus L3 x3 plus L4 x4 is equal to x. Then L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 plus L4 y4 is equal to y. L1 z1 plus L2 z2 plus L3 z3 plus L4 z4 is equal to z. Now above system can be written in matrix form. So how we will write? The same way जो हमने किया है अभी तक. 1, 1, 1, 1, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, z1, z2, z3, z4. L1, L2, L3, L4. तो जब हमको इसका शेप फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा. ओके, शेप फंक्शन है ना, जब हमें L1, L2, L3, L4 इसका वैल्यू जब निकालना है, सो वी विल व्हाट वी विल डू, फाइंडिंग शेप फंक्शन. क्योंकि ये बड़ा मैट्रिक्स है, so we need to coefficient, we need to invert the coefficient matrix, invert above coefficient matrix. So L1, L2, L3, L4. से इसका इन्वर्स करेंगे हम. सेम हमको लिखना है, बस ऊपर इन्वर्स का साइन दिखाना है.
So we get here something different equation because it is four noded equation. So यहाँ पे using the determinant properties shape functions can be formed as. Okay, so here हम लिखेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 4/4 मैट्रिक्स है, तो शेप फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है. The shape functions can be expressed as Li is equal to 1/6v. सो 6v क्या है? जैसे पहले हमारा 2a था ना, वो डिटर्मिनेंट था, वैसे 6v ये डिटर्मिनेंट है ये बड़े मैट्रिक्स का. सो वी कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a1 a2 a3 की जगह पे हम ai के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं. bix प्लस ciy प्लस diz, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. अभी अच्छा आप लोग लिख रहे हो, हाँ. सो यहाँ पे 6v क्या है? 6v इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स which represents 6 times the volume of the, which represents 6 times the volume of the tetrahedron. So ai, bi, ci, di are determinants of submatrices. Whereas 6v can be written as 1 1 1 1 x1 y1, oh sorry, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 and we can write it as ai is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट लिखो, डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स लिख सकते हो. अगर डिटर्मिनेंट वर्ड नहीं यूज़ किया तो हम वहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं जैसे मैंने ऊपर किया है. डिटर्मिनेंट ऑफ x2 x3 x4 y2 y3 y4 z2 z3 z4 सॉरी, हाँ बस अभी लास्ट स्टेप पे है. bi can be written as determinant of 1 1 1 y2 y3
y4, z2, z3, z4. बस 2 ही मिनट हो ही गया. ठीक है ठीक है ci इज इक्वल टू, अब बैठ जाइए, हाँ ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x2 x3 x4 z2 z3 z4 एंड di जो होगा 1 1 1 x2 x3 x4 y2 y3 y4. ठीक है, so this completes our 4 noded element. Next class we will take maybe polynomial method, and next Saturday I'm not sure because exam duty है हमारी. But here I am stopping the class. You can complete these notes. I will also share it, no problem. Okay. So thank you students. अच्छा, wait. Priya, please capture attendance and share with me. हाँ. हाँ यस मैम, एक मिनट. Yeah. दो बार तो भी कैप्चर कर लेना. थैंक यू एंड यू कैन लीव द मीटिंग वंस डन. हाँ बोलिए. सिग्नेचर लिख लीजिए, आपके नंबर पे OTP आएगा. कहाँ करना है सिग्नेचर? या OTP इस पे लिख दीजिए आप. किधर ओटीपी? टेक्स्ट मैसेज में आएगा. हाँ ले लिया मैडम सबका अटेंडेंस. ओके थैंक यू प्रिया. या यू कैन लीव द मीटिंग. वेलकम मैम. 437122 437122. ये मुझे मिलने वाला हाँ है. वो आपको कहाँ पे पेमेंट करना है? इसको एक महीने में मैडम दिलवा दीजिए ना टाइम. एक महीने में कैसे धुलाएंगे? बता दिया है. बता दिया. अच्छा, लक्ष्य ताला हाँ कुछ करना, और उसको भी लगा दीजिए. तिरछा था ना सब सही हो हो गया. गया. लटक गया था ना, उसको ज़्यादा मतलब उसको छेड़छाड़ मत करिएगा. उसे जैसे लगा वैसे. ठीक. पहले टाइम खाली हो जाए, पानी पी सकते हैं. हाँ सब देखिए. ठीक है, थैंक यू. हाँ. मला 3000चा फटका मला. आता त्या ओनरला सारखं बोलावंसं नाही वाटत, पण वरचेवर खर्च होतोय त्याचा. जाऊ दे, नाही सांगू नका, हे तर आपल्यालाच पाणीच पाहिजे ना. असं पण आपण त्या ओनरला पुढे सांगायचं आपण नाही सर्विस सांगायचे. हा, ते हा करतो म्हणून सारखं याला